Page number 77, self-practice 7A. Question number 3. Question number A and B we have already done. So let us solve question number C. Your task is to convert a fraction into mixed fraction. Now you all know how a mixed fraction looks. A mixed fraction is combination of two numbers, a whole number and a fractional number. So to convert this fraction into mixed fraction, what we will do? We will divide 35 by 8. We will use division method. So divide 35 by 8. Arrange both the numbers in a standard form of division. Now divide. Arushi, why you can't see? Board is clear to everyone. I don't know what the issue is there. From my side, all the side proper setting has been done for you all. It must be visible to you. Board is clear. Everything is clear. Okay, let us divide 35 by 8. In how many times you can divide 35 by 8? I think in 4 times. 8 fours are 32. 8 fours are 32. Subtract 32 from 35. What will left? 3 will left, right? This 3 is smaller than division. We cannot further divide. So we will stop our division here only. Okay? Now, I am writing hint here. Hint. If you want to convert a fraction into mixed fraction, how we write mixed fraction? Mixed fraction is equals to Q R upon D. So यहाँ पे देखिए what is the Q? ये जो आपने डिवीजन परफॉर्म किया इसके अकॉर्डिंग बताइए what is Q? 35 upon 8 को आपको इस फॉर्म में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. तो यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा R और यहाँ पे आएगा D. Q क्या है यहाँ पे? 4 is Q, right? So you will write 4 here. What is remainder? 3 is remainder. So we will write 3 at the place of remainder. And what is divisor? What is divisor? Divisor is 8. So we will write 8 here. Divisor or denominator you can say. So denominator is 8. यहाँ पे भी 8 आएगा. Is it clear to you all? What to do? How to write a fraction into mixed fraction? Just divide the number. Write Q is to R upon D. ये याद कर लो क्या हिंट है? Q is to R upon D. जो भी quotient है वो यहाँ लिखेंगे. Whatever the remainder we will write in numerator and divisor we will write in denominator. Just remember this. Q is to R upon D. Take a screenshot. This is the solution. Students, take a screenshot. Yes, chapter 7, self-practice 7A, page number 77.
Have you taken a screenshot? Yes, Prasiddhi, you can write in rough copy. Now we will solve question number D. What is the question D? Read. 133 upon 12 into mixed number. आपको 133 को किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड नंबर में. The same hint will be used. Part D, 133 divided by 12 into mixed fraction. We know the hint. So first of all, we need to divide 133 by 12. We have arranged 133 and 12 in a standard form of division. Now let us divide it. 12 ones are 12. Subtract them. 13 minus 12. 1 is left. Now this 1 is smaller than division. So we cannot divide. So what is the step? We will bring down the digit 3. Now your number is 30. Now this number is divisible by 12. Yes, it is divisible. In how many times? In 1 time. So 1 we will write in quotient. 12 ones are 12. Now we will subtract again. So 13 minus 12. जब आप 13 में से 12 को subtract करेंगे क्या बचेगा? What will left? Yes, 1 will left. Now compare divisor and this number 1. 1 is smaller than divisor. So, and there is no digit left in the dividend. तो हम किसी को नीचे लेके ही नहीं आ सकते. यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं बचा है. So अब क्या करें? और 1 तो स्मॉलर है डिविजर से, तो डिवाइड भी नहीं हो सकता. So now we will stop our division. क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकते, आगे डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है, तो we will stop division here. Therefore, 133 divided by 12 will be equals to, now you know the formula. क्या है? Q is to R by D. Q क्या है यहाँ पे? 11. So you will write 11. What is the R? यशराज, A and B हमने कल की क्लास में ही कर लिया है बेटा. What is remainder? 1 is remainder. Upon what is denominator? 12 is denominator. So 11 is to 1 upon 13 is equals to 133 upon 12. You can take a screenshot. This is the answer. Have you done? Okay. Then do it fast. Quickly take a screenshot. Okay, I think most of the students have taken the screenshot. Now read question number 4. Question number 4 is write the equivalent fraction for the following. अब आपको क्या करना है? Equivalent fraction को लिखना है. Equivalent means equal. Equi. The word equi means equal. Now your task is to write the equivalent of fraction. और उसमें भी condition दी है.
Self practice 7A. Question number 4. What is your task? Your task is to write equivalent fraction. तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लेते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस क्या? ऐसे दो फ्रैक्शंस जो इक्वल हो. सपोज मैंने यहाँ लिखा है 3/6, 3/6, 4/8, 1/2, 9/18. मैंने कुछ बोर्ड पे फ्रैक्शंस लिखे हैं. लुक एट देम. क्या ये सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं? यस और नो? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे. तो देखो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 18. मींस आपने जब 9 और 18 को सॉल्व किया तो आंसर क्या है? 1/2. 3 और 3/6 को सॉल्व किया, आंसर आया 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. 4/8 को सॉल्व किया, आंसर आया 1/2. और 1/2 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको तो इससे ज्यादा सिंपल कर ही नहीं सकते. तो देखो जब मैंने इन सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया तो ये सारे क्या आ गए? सेम आंसर आया. इट मींस 9/8 is equal to 9/18 is equals to 3/6, और you can say 9/18 is equals to 4/8. क्यों? Why they are equal? Because उनको सॉल्व करने पे आंसर तो सेम आ रहा है. So they are equal. Because उनको सॉल्व करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद आंसर सेम आ रहा है. इट मींस दे आर इक्वल फ्रैक्शंस. उनको सॉल्व करने पे वैल्यू सेम है. दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आपका टास्क है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. मींस इक्वल फ्रैक्शन लिखना है. बट अब कंडीशन दे दी उन्होंने कुछ वहां पे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ए. देखिए आपको दिया है फ्रैक्शन 3/4. इसका आपको कोई भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. बट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे. 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3/4 का इक्विवेलेंट यू कैन राइट लाइक 6/8, और यू कैन राइट 33/44. सो देखो 6/8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 2 4s are 8. इसको सॉल्व करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने पे रिजल्ट क्या आया? 3/4. 33/44 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे, सो 11 3s are 33, 11 4s are 44. अगेन जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 3/4 रिजल्ट आ गया. राइट? सो देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यू कैन राइट. यू कैन राइट इनफाइनाइट मींस काउंटिंग ही नहीं है, कितने भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं. बट यहाँ पे अब आपको कंडीशन दे दी है. आपको कौन सा लिखना है जिसमें न्यूमरेटर क्या आ रहा हो? 18 आ रहा हो. आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर 18 आ रहा है. बिकॉज आपके पास तो कोई लिमिट ही नहीं, आप इनफाइनाइट बना सकते हो, अनकाउंटेबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हो. इसलिए उन्होंने आपको लिमिट दे दिया है कि आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर क्या है? 9 है. तो अभी आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको. आपको एक फ्रैक्शन दिया है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. देखो फ्रैक्शन है 3/4. इक्विवेलेंट मींस इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल होगा. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इक्वल साइन. नाउ न्यूमरेटर इज 18. न्यूमरेटर इज 18. न्यूमरेटर ऑलरेडी दिया है 18. और आपसे पूछा अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ देखो 18 कैसे मिला आपको? आपका फ्रैक्शन था 3/4. 18 में 18 लेके आने के लिए आपने 3 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा या क्या डिवाइड किया होगा? बता सकते हैं आप? न्यूमरेटर को 18 बनाने के लिए आपने क्या मल्टीप्लाई करोगे या कुछ डिवाइड करोगे? ओके. So many students have written 6, which is correct. 3 में अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा. आपका न्यूमरेटर 18 बन जाएगा. तो व्हाट यू शुड डू? मैंने बोला था आपको, पहले भी बताया था कि आप जो भी टास्क न्यूमरेटर में परफॉर्म कर रहे हैं वही टास्क डिनोमिनेटर में भी परफॉर्म करना होता है हमको.
अगर आप न्यूमैरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमैरेटर में उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. So now 4 into 6, 4 into 6 will be 3 into 6 तो 18 होता है. So 4 into 6 क्या होगा बताइए. यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमैरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा. 4 into 6 will be what? Very good. 4 into 6 will be 24. So question mark की प्लेस पे क्या आएगा? 24 आएगा. तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 18/24. ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया. That's it. This is the answer. Now look question number B. You have a fraction 32/56. अब यहाँ पे आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इसके. आप चाहे तो कितने भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन दी है आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 14 ही हो. आपका नंबर है 32/56 और आंसर है 14. डिनोमिनेटर में 14 है. अब आपको नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा. बताओ 56 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 14 आ जाए. 56 को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर 14 आए. By which number you will divide 56 to get 14? Yes, by 4. आप डिवाइड करके देख लीजिए. 56 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1s are 4, 1 is left, 1 is smaller than divisor, we cannot divide, so bring down the next digit. Now your new number is 16, which is greater than divisor. Now you can divide in 4 times. So you can observe from here, if you divide 56 by 4, your result is 14. Now your मैंने जैसा कि बोला है, आप जो परफॉर्म डिनोमिनेटर में परफॉर्म करेंगे वही आपको किस में परफॉर्म करना पड़ेगा? न्यूमैरेटर में भी. या फिर न्यूमैरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. न्यूमैरेटर में डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है. फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमैरेटर में भी डिवाइड करना है. द सेम ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तो डिविजन परफॉर्म किया था, तो न्यूमैरेटर में भी क्या परफॉर्म करेंगे? डिवीजन. यहाँ 4 से डिवाइड किया था, न्यूमैरेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. अब 32 को 4 से डिवाइड करके देखिए. 4 8s are 32. So what will be the number here? What will be the numerator here? Tell me. The result is in front of you. I have solved in front of you. Tell me what will be the numerator? Yes, 8 will be numerator. Take a screenshot. This is the solution of A and B. Eight upon 14 is the answer. I am waiting for all the students to take a screenshot. All the students quickly note it down or else take a screenshot.
तनिष्क, हमने 32 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट 8 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। Question number C. A fraction is given 5/42 and condition is given denominator is equals to 84. Your fraction is 5/42. आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट मींस जो इसके इक्वल हो ऐसा एक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 84 है। अब आपको नहीं पता न्यूमरेटर क्या आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर अभी आपको पता नहीं, डिनोमिनेटर बता दिया कि आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 84 है। वी वांट टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर। सो नाउ लुक एट द बोर्ड। 42 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे कि रिजल्ट 84 आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए, या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करें तो 84 आ जाए? फोर्टी टू में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका रिजल्ट 84 आ जाए? मल्टीप्लाई बोल रहे हो, आई एम सेइंग मल्टीप्लाई। 42 यू आर राइटिंग 10। 42 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्ट क्या होगा? 420 हो जाएगा। देखिए 42 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 42 आएगा। 42 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। हमने देखा 42 में 2 का मल्टीप्लाई किया था यहाँ, तो क्या आ गया रिजल्ट? 84 आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब मल्टीप्लाई करिए 5 into 2, रिजल्ट विल बी 10. So this is how your equivalent fraction is 10/84. Now question number D. A fraction is given 200/400 and condition is given. Numerator is 50. आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। 200/400 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। वहां पे दिया है कि न्यूमरेटर 50 है। न्यूमरेटर 50 है, आपको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर 50 दिया है, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। देखिए आपका जो गिवन फ्रैक्शन था उसको पहले लिख लो, 200/400। अब बताइए 200 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया हो कि 50 आ जाए? तो 200 में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 200 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो आ जाएगा 400। 200 में 3 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 600। तो हमारे मल्टीप्लाई करने पे तो देखो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे तो 50 लिखा है, मीन्स मल्टीप्लाई तो नहीं करना है। तो फिर क्या ऑप्शन बचा? हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो देन हम डिवाइड करेंगे। तो अब 200 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 50 आ जाए? यस, इफ आई डिवाइड 200 by 4, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 are 20, 0 bring down 0, 0 is not divisible, so we will put 0 in quotient. So हमने जब 200 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या गया? 50। अब यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म किया है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी क्या परफॉर्म करेंगे? डिवीजन। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। नाउ डिवाइड 400 by 4। 400 को 4 से डिवाइड करके देखिए,
400 को 4 से डिवाइड करके देखिए आप, 4 1s are 4, डिवाइड किया 0 आ गया। नाउ ब्रिंग डाउन 0। हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्वोशिएंट में क्या आएगा 0। नाउ अगेन ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट विच इज अगेन 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्वोशिएंट में क्या लिखना होगा 0। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ गया 100। So equivalent fraction is 50 upon 100. Equivalent fraction is 50 upon 100. You can take a screenshot. All the students, you can take a screenshot. Have you done? Now read question number 5. Question number 5 is write 5 equivalent fractions for the following. Self practice 7A, page number 77. Question number 5. Part A. A fraction is given. 3 upon 7 is given. 3 upon 7 ऑलरेडी एक फ्रैक्शन गिवन है, इसके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं? जितनी आपकी मर्जी हो, कितने भी आप इक्विवेलेंट बना सकते हैं. कैसे? आपको तो इक्वल फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके देख लो. 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 में भी 2 का करना होगा. फिर 3 में 3 का कर रहे हैं तो 7 में भी 3 का करना होगा. 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा. देखो उनको सॉल्व करके. 3 into 1 is 3, 7 into 1 is 7. नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करो. 3 into 2 is 6, 7 into 2 is 14, 3 into 3 is 9, 7 into 3 is 21, 3 into 4 is 12, 7 into 4 is 28. देखिए जो भी फ्रैक्शंस आए इनको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लेके आऊं तो रिजल्ट क्या होगा? देखो सबको सिंपल फॉर्म में अगर मैं लेके आई तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद सबका रिजल्ट क्या है? 3/7, 3/7, 3/7. इट मींस ये सारे जो फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं, ये जो मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये क्या है? इक्वल है. ये सारे फ्रैक्शंस क्या है? इक्वल है. और ऐसे ही आप कितने भी बना सकते हो. 3 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 7 में भी 5 का करना पड़ेगा. 3/7 आपका बेसिक गिवन फ्रैक्शन है. गिवन फ्रैक्शन में सपोज किसी का मर्जी है कि हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में भी 12 से करना होगा. किसी का मर्जी है कि 100 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो आप कितने भी इनफाइनाइट फ्रैक्शन बना सकते हैं. बट आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सिर्फ कितने फ्रैक्शन बना के दिखाना है? ओनली 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
देख देखिए जो ऊपर है यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है वहां पे 7 का टेबल चल रहा है। ये तो मैंने कंटिन्यू आपको बता दिया, कंटिन्यू इक्विवेलेंट है, बट आप किसी भी नंबर से, जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर में भी करेंगे। क्लियर? So this is the answer for question number A. Now B, C and D are homework. B, C and D होमवर्क है, ये तीनों आपको खुद से करना है, ठीक है? So that's all for today's class. Bye all of you. Yes. Have a great day all the students. Bye. Now there is a break.